Good morning, friends, once again. There is a book by the name Seven Habits of Highly Effective People. I'm sure all of you would have heard this. It is by Stephen R. Covey. It's a very popular book, and many candidates who go for the SSB, they claim they have read it. Now, in this book, the chapter number 2, it is begin with the end in mind. What does it mean is, if you want to undertake any journey, you should know where do you want to go before the start of the journey itself. By putting the same analogy, in your preparation for SSB, this is also a journey, and the destination of this journey is the conference room in the SSB, and what you want from the SSB interviews that you want to get recommended. So this is the goal, and this goal will be fulfilled by these three people: the psychologist, the interviewing officer, and the GTO. So you are very clear about the goal. So that is as far as the goal setting is concerned. So you're very clear. Now the question is, what is the strategy that you're applying to achieve this goal? That's very important. So begin with the end in mind. So end is very clear, आप recommend होना चाहते हो, and this is the beginning. So begin with the end in mind. तो ये जर्नी की शुरुआत में ही आप अंत को समझ लो कि क्या चाहिए, recommend होना है, and then you make a strategy कि आप इस distance को कैसे cover करोगे. How are you going to achieve it? The path is not going to be very easy. It cannot be achieved just at the some कुछ उल्टा पुल्टा करके. It cannot be. You must have a very clear cut understanding कि what does this involve, how much is the effort required. You anyway know कि the selection rate in the SSB is not very high. So what is the path, and what are the major obstacles between your present position and the final goal of your recommendation? You must have a very clear understanding of the obstacles in between, because if you don't identify the obstacles and eliminate them or overcome them, or have a strategy to get over that, your journey cannot be finished, even if you know what is the ultimate goal. The goal is to get recommended, and आपको ये clear cut पता है कि this recommendation will not happen because you want it. It will only happen when they want it. Who are those people? The psychologist, the interviewing officer, and the GTO. So that is where the direction in your effort comes. Directionality. Your effort has to be aligned, and I call it effort alignment. It has to be a vector effort, not a scalar effort. So you have to identify in the present position itself, आज की डेट में, कि whatever are you doing, is it a vector effort or a scalar effort? So once again, begin with the end in mind. So that's the whole aim of today's topic, the presentation through this video. So that is there. Now at the end of this video, I will also introduce to one Shivam Singh. He's from Delhi, and he got recommended for Short Service Commission Technical, and he was All India Merit 4. He got recommended from Kapurthala. There were technical में 42 vacancies थे उसके category में, and his mobile number is also given 9878196242. Shivam Singh. There is a previous video by Shubham Singh. I have already uploaded in the FOSP video. I put it in the I button, so kindly go through that also, and look at the clarity with which this boy has paved his way through his present position to the ultimate goal of getting recommended from the. So clarity in perception is very important than a superficial confidence that flows out of some manipulative training. तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हो अपने SSB के प्रिपरेशन के नाम से, क्या वो सही दिशा में है या वो दिशाहीन है. It should not be a scalar effort. That's the whole aim. Begin with the end in mind. तो आप शुभम सिंह का फीडबैक इस वीडियो के एंड में भी देखना, प्लस जो आई बटन में दिया उसे भी जरूर देखना. Now, all of you understand कि आप ऑफिसर बनना चाहते हो, एंड आपको 2 stars ऑन द शोल्डर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और आप लोग इसी बार चाहते हो. इसका मतलब है इसी बार आपका एफर्ट में इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए कि द SSB finds that you are a suitable and a potential candidate, then they recommend you. और इसके लिए आपको पता है कि मतलब if you understand, मैं बीच में बोलता रहता हूँ कि you have to first give, only then you will receive. It is called the paradox of giving and receiving. It's a topic in SML में, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में, कि द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, कि जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो पहले देना पड़ेगा. आपको एक बीज को बोना पड़ेगा, तभी उसमें से फसल आएगी. तो आपको भी SSB में लेने से पहले देना पड़ेगा. इस इक्वेशन को आपको समझना पड़ेगा. तो आपने today you have to see in your preparation what are you preparing to give it to the SSB.
They are looking for certain things in you. Are you working to develop them or are you trying to manipulate them? दोबारा बोल रहा हूं, the paradox of giving and receiving says if you want to receive you must first give, whether it is life or it is SSB. आपको देना पड़ेगा, तो आप जो दे रहे हो उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, उसके आधार पर एसएसबी आपको 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर के लिए रेकमेंड करेगा. सो दिस इक्वेशन हैज टू बी अंडरस्टूड. इट इज लॉ ऑफ कर्मा में भी बोलता हूं, कॉज इफेक्ट. What you prepared today will become the cause, and the consequences of that will be seen as a result in the SSB. So take care of the cause, take care of the means adopted to achieve the goal. So आपको expectation alignment करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? आपको जैसे एसएसबी से एक्सपेक्टेशन है रिकमेंडेशन का, एसएसबी को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग जो देख रहे हैं वो भी आप उनको दोगे. सो यू हैव टू अलाइन योर एक्सपेक्टेशन टू देयर एक्सपेक्टेशन एंड यू हैव टू फर्स्ट फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन. इन रिटर्न दे विल फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन. ये एक यज्ञ है. एसएसबी अगर यज्ञ है तो आप उस यज्ञ के यजमान हो. आपने अपनी स्वाहा की क्वालिटी को ध्यान देना. स्वाहा, बिकॉज स्वाहा इज व्हाट यू आर गिविंग इनटू द यज्ञ. स्वाहा. And your recommendation through the SSB is the Tathastu. Tathastu is the return on investment. So when the quality of your Swaha improves, the quality of the Tathastu that you get from the SSB will improve. So please understand this equation. You have to first give your Swaha. Only then you will get the Tathastu of your recommendation. So I hope this equation is very, very clear. So whatever methodology of your preparation is, please make sure there is no corruption in what you're going to give. There is no corruption in what you're going to give. And when you give what they want, and in fact they only want 40% of what they're looking for, rest they will build up in the training academy. If you have that potential, you will get what you want. So expectation alignment, इसको समझना है. यहाँ पे हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है. हिंदी में से बोलते हैं औकात. अपनी औकात को बढ़ाना है. आपने देखना है कि अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है तो उससे डेवलप करना पड़ेगा. ये गलत सोच है कि सर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज कमजोर है, चल जाएगा ना. अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है तो यू हैव टू डेवलप इट, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव टू गिव. So you cannot compensate it by saying I agree with you, he has not spoken. नहीं चलेगा. You have to build up your capacity. You have to build up your problem solving skills, ना क्या बोलते हैं, observational skills, grasp. You have to give your interpersonal skills. You have to improve your value system. Everything you have to improve. So only then आप रेकमेंड हो गए. आपको पता है सिलेक्शन सेंटर साउथ बैंगलोर के एक्स कमांडेंट है ना. ही हैज कैरिड आउट स्टडी एंड ही क्लेम्स दैट द सिलेक्शन रेट इन द एसएसबी इज लेस देन 3.6%, एज्यूमिंग दैट टू बी करेक्ट. इनफैक्ट सर्विस सेंटर केस में इट इज लेस देन 1.5. PCSL वगैरह में 1% भी नहीं है. इट्स इन डेसिमल्स. सो एज्यूमिंग सिलेक्शन सेंटर साउथ कमांडेंट एक्स कमांडेंट का उस स्टडी को करेक्ट मान लेते हैं कि 3.6% है. सो यू हैव टू फॉल इनटू दिस 3.6%. So your preparation cannot be what the majority 97% जो कर रहे भेड़ चाल में, that cannot happen because the result will not come. So if you want to have a favorable result, that is if you want to get recommended, you must fall into this 3% category. So that's where the Pareto principle come. You must exactly know काम कहाँ पे करना है. आज मैं जब ऑनलाइन बैचेस ले रहा हूँ मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि लड़के लड़कियाँ छटपटा रहे हैं. दे आर छटपटा रहे हैं रेकमेंड होने के लिए, बट ये नहीं कर रहे कि रेकमेंड होने के छटपटाने से नहीं मिलेगा. आपका कंट्रोल इज नॉट ऑन द आउटकम फ्रॉम द एसएसबी. आपका कंट्रोल इज ऑन द एफर्ट दैट यू पुटिंग राइट नाउ इन योर प्रिपरेशन. वहाँ नहीं लगा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ग्रास्प नहीं है, रीजनिंग स्किल्स डेवलप नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, अपने थॉट्स को इवैल्यूएट नहीं करते, सेल्फ अवेयर नहीं, बस ऑफिसर बनना. Now that's a very faulty, very distorted preparation. बड़ा तकलीफ होता है. So 3.6, if it is the clearance rate, then your quality of training has to be of that order. You cannot be in the 97 category, 97% category जो कि भेड़ चाल पे चल रहे. You have to change the approach. पूरे आपके सोचने के ऑर्बिट को चेंज करना है. You have to think from a different perspective altogether. बट आप लोग कहीं ना कहीं पूरा बिल्कुल ना या बेसिक टेस्ट में फंस गए हो, TAT WAT. दैट्स अ मेजॉरिटी.
That's a majority training क्या हो रहा है, TAT WAT ठीक कर रहे हैं. There's only couple of people who are working on themselves. You should be part of that. That's the Pareto principle. If you remember, I have taken that session, the gap analysis. Somebody, if you want to do that, you can again text me and I'll include you into that. So अगर 3.6% है, now these are the tools. ये जो SSB का selection process है, these are the testing tools to test your personality. These are the testing tools to test your personality. And what are they checking? They are checking 15 officer like quality which are grouped under 4 factors. तो आपके अंदर अगर ये फैक्टर 1 की 4 क्वालिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पावर ऑफ एबिलिटी, फैक्टर 2 की 3 क्वालिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्टर 3 के ये 5 क्वालिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस. ऑन फैक्टर 4 के 3 क्वालिटी, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना. अगर ये है, then in that case, when you are put through this 5-day testing process, these quality will get revealed because it exists. But if it does not exist, it will not get relieved. For example, अगर एक गन्ना है, मान लो ये गन्ना है, इस गन्ने के अंदर अगर स्वीटनेस है तो ये गन्ने का जूस निकालने की मशीन है. सो SSB इज गन्ने का जूस निकालने का मशीन एंड यू आर द गन्ना. सो अगर गन्ने में स्वीटनेस है, उसके अंदर रस है, तो मशीन में डालेंगे तो निकलेगा. अगर गन्ने में रस नहीं है तो इस मशीन में डालो, नहीं निकलेगा. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो यू डोंट हैव टू टेस्ट योरसेल्फ ऑन TAT WAT 100% इसी के ऊपर चढ़ा के करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द टेस्टिंग प्रोसेस. This is the testing process. You are being put on a testing tools, whereas you are not developing this. गन्ने में मिठास होगी तभी तो इस टेस्टिंग टूल से निकलेगा. आप टेस्टिंग टूल्स के ऊपर चढ़ गए हो, जबकि आपने चढ़ना अपने ऊपर. अपने को ठीक करो तब ये जूस निकलेगा. आई डोंट नो वेदर दिस इक्वेशन यू अंडरस्टैंडिंग. मैं बार बार इसको बोलता हूं कि व्यक्तित्व का विकास करो, तब SSB के टूल से आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बिकॉज SSB इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. तो आपको डेवलप क्या करना है, गन्ने के जूस की तरह अपने पर्सनालिटी पैरामीटर्स पे, पर्सनालिटी के पैरामीटर्स में वेरियस जो एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर काम करना है. एंड उसके ऊपर जब काम करके वो इंप्रूव होगा तो ये चीजें इंप्रूव होंगी, और जब ये इंप्रूव होगा तो इस मशीन में डालेंगे TAT WAT SRT GTO फट्टा बल्ली में, तो वो जूस निकलेगा. आप क्या कर रहे हो, बम्बू को गन्ना बना के SSB ले जा रहे हो. बैम्बू, यू नो, बैम्बू विल नॉट बी ए गन्ने का जूस. So you have to understand this equation. The entire testing is of personality. So your training should be to build personality, not to improve TAT. TAT का improvement will be a natural consequence when you improve. जब आपके मानसा इंप्रूव होगी, उस मानसा से निकलने वाली TAT अपने आप ठीक हो जाएगी. मानसा गंगोत्री है, उससे निकलने वाली गंगा है आपका कर्मा वाचा मानसा, जो भी आप लिखते हो, बोलते हो, करते हो. ये इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा. और दूसरी बात है, SSB इज अ सबसेट ऑफ लाइफ. आपका व्यक्तित्व जब जीवन में सुधरेगा तो वो सुधरा हुआ व्यक्तित्व SSB में निखर के बाहर आएगा. लेकिन अगर आप जीवन में ही ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, आपका रीजनिंग स्किल नहीं है, आप कोऑपरेटिव नहीं हो, आपके इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, आप में अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है, आपके अंदर साहस की कमी है, तो जीवन में कमी होगा तो SSB में, सिर्फ SSB के लिए कैसे ठीक करोगे. अगर आपको स्विमिंग का कंपटीशन है तो सिर्फ कंपटीशन के लिए स्विमिंग नहीं सीख सकते. आपको जीवन में स्विमिंग आता तो कंपटीशन में भी स्विम कर लोगे. आप उल्टा कर रहे हो. So please understand, SSB is a personality based selection. तो आपकी ट्रेनिंग में 98% emphasis should be to improve your personality. उसके क्या पैरामीटर्स है वो मैं आपको बताता रहता हूँ. तो do you have it in you is not TAT लिख सकते हो. It is आपका व्यक्तित्व क्या है, और उस व्यक्तित्व के आधार पर आपका TAT का वो आ जाएगा. तो मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, सोशल फील्ड थ्योरी में आपका बिहेवियर, योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट. तो आपको ये पर्सनालिटी क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, वो जब पता चलेगा, उसको डेवलप करोगे तो अपने आप हो जाएगा. सो व्हाट द बेसिक मिस्टेक दैट यू आर डूइंग अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द कोचिंग सेंटर्स, कि यू आर ट्राइंग टू पॉलिश द मास्क. आप मास्क को पॉलिश कर रहे हो, मुखौटे को पॉलिश कर रहे हो, बाहर दिखावटी आवरण, लेकिन जो भीतर बंदा है असली वाला, इसे छोड़ रहे हो. यू आर इग्नोरिंग दिस, एंड दिस इज द कैंडिडेट दैट SSB इज लुकिंग फॉर. दिस इज द इनसाइड. ये आप क्या कर रहे हो, मुखौटा तो उसमें तो कोई मतलब नहीं है. सो आप नकली आवरण मत लगाओ, क्योंकि SSB उस आवरण को उखाड़ देगा. दैट बेसिक, आई डोंट नो मैं ये आपको बात समझा भी पा रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने तो
इतने वीडियो बनाए थे, लेकिन मेरे को लगता पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, या समझ में भी आ रहा है तो आप गांधार्य हो कि आप उसको समझ के भी नहीं करना चाहते हो, बिकॉज वो शॉर्टकट कोचिंग का इतना अच्छा लगता है कि टीएटी रट लो, आई एग्री विथ यू बोल लो, लेट्स मेक कैंटिलीवर बोल लो और 10 कमांडा सीख लो। द होल अप्रोच लुक्स वेरी ईजी। कुछ लोग तो बोलते 5 दिन में तुम्हारा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नहीं होगा यार, कैसी बात कर रहे हो, नहीं होगा। सो आई डोंट नो, मुझे बताना कि आपको ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मास्क, तो इसके ऊपर मुझे एक फीडबैक देना। ये आज आप इन लोगों के सामने मुखौटा दिखा रहे हो, ये जो बाहर का चेहरा, लेकिन वो चाहते भीतर का चेहरा, तो भीतर उसे ठीक करो ना। टीएटी ठीक करने से मास्क चमकेगा, आप तो अंदर से वही रहोगे। वो बात आप समझ में आ रहा तो मेरे को बताना। देखो भाई, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है कि इफ यू वांट टू मेक ए टॉल बिल्डिंग, द टॉलर द बिल्डिंग, यू शुड वर्क फर्स्ट ऑन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक वीक फाउंडेशन के ऊपर टॉल बिल्डिंग बनाओगे तो वो क्रम्पल हो जाएगा। यू कैन नॉट मेक ए टॉल बिल्डिंग विथ नो फाउंडेशन और ए वीक फाउंडेशन। ये बात अगर समझते हो तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट्स में जरूर लिखना कि फाउंडेशन के बिना क्या आप बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार क्या आपका पर्सनालिटी का फाउंडेशन के बिना आप ऑफिसर बन सकते हो टीएटी ठीक करके? जरा सोच के बताओ। और आपको ये 2 स्टार्स चाहिए, लेकिन इस 2 स्टार्स चाहने के लिए आपका तरीका क्या है? What are you doing today? I'm asking all service entry, I'm asking NCC candidates, I'm asking TGC candidate, I'm asking NDA 10+2 TS, girls entry, JAG entry. आप कर क्या रहे हो? आप TAT WAT में उलझ गए हो यार। TAT WAT टेस्टिंग टूल है बच्चों, आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना है। पता नहीं मेरी बात आपको समझ में भी आ रहा है नहीं है। जब एक बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जोर क्या लगाते हैं कि एक मजबूत फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन के पिलर्स अगर मजबूत है तो आप बिल्डिंग की हाइट बढ़ा सकते हो। इस बिल्डिंग के फाउंडेशन में इस बिल्डिंग को खड़ा करोगे तो सब कुछ गिर जाएगा। तो आपको भी समझना पड़ेगा 2 स्टार्स ऑन दी शोल्डर्स, ये बहुत बड़ा एक सपना है। ये कोई 14 दिन में किसी कोचिंग में मेरे जैसे लोगों के पास जाके आप कुछ मैनिपुलेटिव ट्रेनिंग करके जाके अगर बन भी गए, वो बिल्डिंग कोलैप्स होगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। एंड द फाउंडेशन को समझने के लिए यूं समझ लो कि आपका जीवन का जो फाउंडेशन है 4 पिलर्स पे खड़ा है: फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट एंड द वैल्यू कोशेंट। ये कार के 4 पहियों की तरह है। कैन यू विदाउट वर्किंग ऑन द कार एंड इसके इंजन को और उसके पहियों को अगर ध्यान दिए बिना आप एक लंबी यात्रा में जा सकते हो? तो आपका जीवन भी एक यात्रा है, आपका एसएसबी का प्रिपरेशन भी एक यात्रा है। इस यात्रा में अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि लड़के लड़कियां एसएसबी में आते ही सीधा टीएटी डब्ल्यूएटी की बात करते हैं। मैं बोलता यार तुम्हारा तो आईक्यू काम नहीं कर रहा, रीजनिंग एबिलिटी काम नहीं कर रहा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल नहीं, तुम तो कुछ भी, तुम्हारा तो बेसिक ग्रास्प नहीं है, तुम पिक्चर को ही गलत कर रहे हो, तुम्हारा सोशल इंटेलिजेंस मिस हो जाता है, तुम्हारा गोल सेटिंग गलत हो रहा है, तुम्हारा जो मीन्स अडॉप्टेड है, मीन्स अडॉप्टेड मतलब जो रास्ता आप ले रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, बोथ लाइफ में भी एंड टीएटी में भी, वही बड़ा डिस्टॉर्टेड है। फिर आपके ईक्यू में बड़े प्रॉब्लम आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। आप एसडी में कुछ भी अच्छा अच्छा लिखते हो जबकि वो आपके अंदर एसडी, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। आप ग्रीड पे काम कर रहे हो, ग्रीड मतलब एसएसबी में रेकमेंड होना है उनको टीएटी बेच के। सो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टॉर्शन है, वैल्यू डेविएशंस आर कमिंग, द वैल्यू टू वर्क हार्ड इज नॉट देयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इज नॉट देयर, कैपेसिटी बिल्डिंग इज नॉट देयर, 2% माइंडसेट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, एक स्टैग्नेंट माइंडसेट है, कंफर्ट जोन में रह के। तो ये सब माइंडसेट के बाद आपको कैसे लगेगा? आपको याद रखना पड़ेगा सिलेक्शन सेंटर साउथ के कमांडेंट ने क्या बोला, एक्स कमांडेंट ने, सिलेक्शन रेट इज 3.6%। तो अगर 3.6% है तो इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। बिना इस फाउंडेशन के कैसे आप इसके ऊपर ऑफिसर बनने का बिल्डिंग बना सकते हो? ये गलत है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर फाउंडेशन एंड दिस कैन नॉट बी डन ओवर 14 days or 5 days ऑनलाइन. It will not happen. This is a lifelong process. So you have to start this building process much before. And Air Force OP में आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि we emphasize on building the 4 dimension of you. Physical, which we don't give too much of emphasis because overly emphasized by coaching. Our emphasis on intellectual development, emotional development and the value development. ये 4
जब तक ये चारों पहिए में बैलेंस नहीं होगा आपकी गाड़ी ठीक नहीं चल सकती। फिर आप कितनी भी यात्रा करना चाहो, यू कैन नॉट, बिकॉज योर टायर्स आर डिफ्लेटेड, योर इंजन इज नॉट वर्किंग। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि जीवन के इन चारों डायमेंशन को, किसको, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू। एंड वेरी सरप्राइजिंग, पीपल हैव गॉन 6 times 7 times, एक 2 बार कोचिंग लिया है, लेकिन बोलते सर ये सब तो किया ही नहीं, हमने तो टीएटी करते रह गए। अरे नहीं रे, गांधार्य हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग आईज व्हेन योर माइंड इज ब्लाइंड? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? इन आंखों का क्या फायदा अगर आपका बुद्धि में ताला लगाओ? आपको बुद्धि के इस ताले को खोलना पड़ेगा ना। आपको पता है कि एटलीस्ट इन द एयरफोर्स ऑफ जो ट्रेनिंग है, हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि प्लीज डोंट गो फॉर द एसएसबी ट्रेनिंग डायरेक्टली। पहले आपको अगर टाइम है तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम के ऊपर आप हमसे जुड़ो, जिसमें कि हम एसएसबी के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे और पूरा फोकस कहाँ पर करेंगे? इन बिल्डिंग योर कैपेसिटीज, बिकॉज वॉट एवर योर बिहेवियर कम्स, दिस बिहेवियर इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट। तो आप जब एसएसबी की ट्रेनिंग करते हो, उससे पहले अपना फाउंडेशन तो ठीक करो। अरे बिल्डिंग की नींव ठीक करो, तब बिल्डिंग बनाओ। आप क्या कर रहे हो? नींव पे बात ही नहीं करना चाहते हो, तो ये तो आपकी सोच ही गलत है। तो आपको पता है कि एसएमएल एक्ट्स एज अ फाउंडेशन कोर्स एंड इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, critical thinking, creative thinking, problem solving skill, conflict resolution skills, evaluation skill, discrimination skills, क्या बोलते, critical thinking, all those things, सर्पदृष्टि, गरुड़ दृष्टि, and I keep calling all those things। जो लोग एसएमएल में गए उनको आपको पता चल जाएगा। So you have to first emphasize on this, and जब इसको करोगे तो आपका एसएमएल का फाउंडेशन विल मेक ए स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी एंड यू कैन रिस्पॉन्ड टू लाइफ फेवरेबली। व्हेन दैट हैपेंस, उसके बाद आपको एसएसबी का प्रिपरेशन करना बड़ा आसान है, बिकॉज लाइफ का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। अब उसके ऊपर एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है। नो, विदाउट फाउंडेशन व्हेन यू कमिंग फॉर एसएसबी, वो आपको भी प्रेशर क्रिएट करता है, मुझे भी। और इसीलिए फिर कोचिंग वालों की तरह फिर वो आप बोलते हो सर हमें स्टोरी बताओ। अरे स्टोरी बता के मतलब नहीं है भाई, आपको अपने सोच को ठीक करना है। So I think you have understood. So your focus should not be on doing TAT, WAT, SRT. Your focus should be to build your personality and leadership traits. When those things are foundations are built, उसके ऊपर हमको फिर SSB का वो इसको build कर सकते हैं। And then I told you कि इनके जो 4 टांग है, physical, intellectual, emotional and SQ, इसके बारे में बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। Physical is the action dimension. So आपका physical actions, your behavior is visible through this, but it is a function of your personality interacting with given environment. So this is the hardware component, ये मैंने पहले भी बोला, and these 3 are the software component. So intellectual quotient जो है ये आपके decision making faculties है, decision making, निर्णय लेने की क्षमता देता है। your reasoning skills, your evaluation skill, your discrimination skill, your judgment, your learning, है ना, and the EQ is your emotional skills, interpersonal dimension, the soft skill, इसे ठीक करना है। Emotions, empathies, social adaptability, cooperation, team spirit, sharing, love, self-awareness, self-regulation, social awareness, social regulation, all those things. इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। It is very strange कि आप इसकी बात ही नहीं कर रहे, सीधा TAT। अरे भैया, जब ये डेवलप नहीं होगा तो TAT कैसे ठीक होगा? और स्पिरिचुअल लेवल और द वैल्यू डायमेंशन और द एनर्जी लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये आपके विचार है, ये दिस इज योर थॉट्स, है ना, दिस इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। सो एनर्जी लेवल, थॉट लेवल, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड। तो आपका ये कैसा एटीट्यूड है कि आप फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग बना रहे हो, और इसके लिए आप मुझ जैसे लोगों को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं एंड हम लोग बोलते हैं हम इस काम में नंबर 1 है। आपको इसे बहुत क्लैरिटी से समझना पड़ेगा। और जब आपके ये फैकल्टीज डेवलप होगा एज अप्रोप्रिएट, क्या बोला मैंने, एज अप्रोप्रिएट, नेचुरली आपका ये मेच्योरिटी, फिजिकल मेच्योरिटी, intellectual maturity, emotional maturity and value maturity will be seen in your action because you have a strong intellect. मन को मैं काम वाली बाई बोलता हूँ और इंटेलेक्ट को मैं मकान मालिक बोलता हूँ। तो काम वाली बाई, द माइंड हैज टू वर्क एज अ सबसर्विएंट टू द मकान मालिक और द इंटेलेक्ट। द इंटेलेक्ट मस्ट कंट्रोल द माइंड. The mind cannot take decision. The mind has to work under the. Today it is getting bypassed. Today your mind is bypassing the intelligence. Your intelligence is the filter. Intelligence is the filter. This has to check the correctness of your decision, your choices. This is not happening. And once you develop your
क्या बोलते हैं 4 डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनालिटी, दैट इज फिजिकल मेच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी एंड वैल्यू मेच्योरिटी। एज पर योर एज नेचुरली उस मेच्योरिटी से आप क्या कर पाओगे, आपके माइंड को अपने इंटेलेक्ट के अधीन लेके आ जाओगे। एंड सो द माइंड का काम है विचारों का क्रिएशन करना, और उस क्रिएटेड विचार को कहाँ देना है, इंटेलेक्ट को। इंटेलेक्ट का काम है इवैल्यूएशन, इंटेलेक्ट का काम है डिसीजन मेकिंग, इंटेलेक्ट का काम है डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलेक्ट का काम है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। और उसके बाद ये इंटेलेक्ट क्या करेगा, इसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बना के बाहर कर्मा वाचा मानसा में बाहर आएगा। सो योर इंटरनल कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज टुडे फॉल्टी, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, इंटेलेक्ट को बाईपास कर रहे हो। उससे बाईपास नहीं करना है, उससे इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना। सो दिस ये जो एरो दिख रहा है, दिस एरो इज नॉट हैपनिंग टुडे। आज के डेट में तुम क्या कर रहे हो कि खासकर एसएसबी के प्रिपरेशन में इलॉजिकल इस लूप को यहां से कट करते हो और माइंड सीधा यहां पे बाहर निकाल रहा है। सो योर माइंड इज टेकिंग डिसीजन। काम वाली बाई अगर डिसीजन लेगी तो इट विल नेवर बी लॉजिकल, बिकॉज द माइंड तो साला पागल है, वो तो मतलब डेड बॉडी का ड्रामा, इंटेलिजेंस नहीं बना रहा। इंटेलिजेंस को पता है इलॉजिकल है, लेकिन माइंड बोलता नहीं इसको करते, सर ने बोला। ये कौन है ये सर? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पता नहीं मेरी बात आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या मैं ऐसे ही फालतू बकवास कर रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है, बिकॉज कैंडिडेट्स आर अनविलिंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को अगर डेवलप करना है तो आपको इन चारों डायमेंशन पे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो व्हेन यू इंप्रूव योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रीजनिंग बढ़ेगा तो रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगा, इवैल्यूएशन स्किल्स बढ़ेगा तो अगेन आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन का मतलब तुलना करना। डिस्क्रिमिनेशन में अगेन इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जजमेंट, निर्णय लेने की शक्ति। और ये सब जब करोगे तो वो पूरा मिला के ऑर्गेनाइजिंग, और उसको क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करोगे तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन सॉरी। उसी तरह से आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशंस को, सोशल अवेयरनेस को करोगे तो आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि टीम स्पिरिट बढ़ेगा, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लेने का। तो ये आपको जब समझ में नहीं आ रहा तो कैसे आप इनको डेवलप करोगे? टीएटी को ठीक करके। इन्हें ठीक करो तो टीएटी ठीक होगा, ये इक्वेशन समझना है। तो आपको इन ओएलक्यूज को ठीक नहीं कर सकते। इन ओएलक्यूज को ठीक करने के लिए आपको बेसिक फाउंडेशन, जो 4 फाउंडेशंस है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, वहां पे शिफ्ट करना। प्लीज शिफ्ट योर फोकस। That's part of the Pareto principle. This is where you have to shift your focus of your training. What is Pareto principle? 20% of the effort can give you 80% of the result. But you should know where is that 20%. This is the 20%. If you remember, जो लोग Pareto principle के क्लास में आए थे, 20% of our efforts can give you 80% of the result, provided you know which is that 20%. Today, you are putting 100% effort on the TAT, WAT, and you're completely ignoring that 20%. And that 20% is correcting your decision making process. आपके internal thinking pattern को ठीक करना पड़ेगा. That's where SML is working on you. So उस improved इन चीज़ों को जब आप चारों लेवल को डेवलप करोगे, these 4 factors will improve. And with that, when you go and respond, because you have developed for life, it will be seen in the SSB. क्योंकि आप जीवन में आपके अंदर ये क्वालिटीज है तो SSB में दिखेगा, क्योंकि गन्ने में वो क्वालिटी है तो गन्ना आप बाहर भैया SSB में भी मीठा होगा और जीवन में भी मीठा होगा। तो आपको SML प्रोग्राम से आपको क्या फ़ायदा होगा? सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम विल ब्रिंग एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जुड़ाव बिटवीन योर मानसा, वाचा एंड कर्मना. What is mansa? Your thoughts. What is vacha? Your words. And what is karmana? It is your action. So जब तक आपके इन तीनों में जुड़ाव नहीं आएगा, आपका परफॉर्मेंस इन दी SSB will not improve. So आपको सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम से एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड. We conduct this program 8 spiritual powers of the self. One of them is power to decide. तो ये पावर टू डिसाइड आपको क्या कैपेबिलिटी देगा? दिस पावर टू डिसाइड विल गिव यू द एबिलिटी टू असेस द क्वालिटी ऑफ चॉइसेस. नाउ वेयर इज दिस असेसमेंट हैपनिंग? दिस असेसमेंट इज हैपनिंग इनसाइड द इंटेलेक्ट. मतलब आपके इंटरनल कम्युनिकेशन, थॉट लेवल पे, विचारों के स्तर पे ही आप उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हो, ना कि विचार जब बाहर रेस्पॉन्स के फॉर्म में बाहर आ जाए. दिस इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तो ये तीनों लोग देख लेंगे, GTO, साइक और
इंटरव्यूइंग ऑफिसर देख लेंगे, मैं उसकी क्वालिटी तो ये लोग देख लेंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कब? बिफोर इट बिकम्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मतलब मेरे विचारों को शब्दों में लाने से पहले मैं इसकी क्वालिटी चेक कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? कर्मा वाचा मानसा एसएसबी में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में रखने से पहले, मतलब लिखने से पहले, बोलने से पहले और करने से पहले, आई हैव टू पुट ए फिल्टर बिटवीन माई थॉट्स एंड माई माउथ। मेरे विचारों और मेरे मुख के बीच में एक फिल्टर लगाना है जो कि क्या चेक करेगा? इसकी गुणवत्ता। आज क्या कर रहे हो? वो फिल्टर है ही नहीं, आप बाहर निकाल रहे हो, फिर कोचिंग वालों के पीछे भाग रहे हो। सर मेरी स्टोरी ठीक है ना, वाई आर यू कमिंग टू मी? मैं कौन होता हूं? यू आर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम मी, डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम मी, यू विल लूज योर पावर. So power to decide will give you the ability to assess the quality of choices, your decisions and your actions of your own self and others. ये अगर आप करने से पहले आपको ये दिख जाए, then your dependency of the coaching is gone. तो आप अगर विचारों के स्तर पे ही उसकी गुणवत्ता को जांच लो तो आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की चिंता करनी नहीं है. बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. तो आपको ये फ्रीडम ऑफ चॉइस को ठीक कर देगा अगर आप वो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का प्रोग्राम को समझते हो तो. बिकॉज वहां पे एंटायर फोकस इज इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. आज आप क्या कर रहे हो? इनसाइड वर्ल्ड में आपका नियंत्रण छूट गया और आप आउटसाइड वर्ल्ड को मैनेज करके रेकमेंड होना चाहते हो. दैट्स अ फॉल्टी थॉट प्रोसेस. पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? सो इट इज द एबिलिटी टू एसेस द क्वालिटी ऑफ चॉइसेस. सो जस्ट इमेजिन अगर आप विचारों के लेवल पे ही अपनी सोच की, अपने डिसीजन की, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, ये विचारों में ही अगर चेक कर ले, यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर इंटरनल कम्युनिकेशन विच आई कॉल गंगोत्री. और अगर गंगोत्री पवित्र हो जाए तो उससे निकलने वाली गंगा भी पवित्र हो जाएगी. सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज एन इंपॉर्टेंट स्किल एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एसएसबी. बिकॉज आपको पता है कि मिलिट्री ऑपरेशन में स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है. सो डिसीजन मेकिंग इज द एक्ट ऑफ चूजिंग बिटवीन 2 और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन. अलग अलग ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट करना. नाउ दिस रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ इंटरनल अवेयरनेस कि आप क्या कर रहे हो. और इसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, दोनों थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा. आप मुझे खुद बताओ, पोस्ट करके बताओ कि कैसे टीएटी ठीक करने से क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगा. ये दोनों डेवलप होगा तो टीएटी ठीक होगा, उल्टा नहीं होगा. आई डोंट नो, सर्व दृष्टि गरुड़ दृष्टि में बोलता हूँ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप की भाषा में. सो यू हैव टू इम्प्रूव. और आपको वैसे भी पता है कि ये जो पावर टू डिसाइड है, ये तो चलो मैंने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप की भाषा में बोल दिया. एसएसबी में भी एक OLQ है फैक्टर 3 में, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ डिसीजन. निर्णय लेने की क्षमता, ना सिर्फ निर्णय लेने की तीव्र गति से, स्पीड के साथ लेने की. सो क्या बोलता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट टू अराइव एट वर्कबल डिसीजंस एक्सपीडियंटली. ये किसकी काबिलियत है? आपने इसे डेवलप करना है. लेकिन आप अगर मेरे भरोसे जाओगे कोचिंग में तो मेरे कंधे से आप कैसे ऑफिसर बनोगे? आपको खुद के ऊपर क्यों नहीं भरोसा आ रहा? इतना पैसा खर्च कर रहे हो कोचिंग में. आपको देखो क्लियरेंस रेट याद रखना है. सिलेक्शन सेंटर साउथ के एक्स कमांडेंट ने क्या बोला? क्लियरेंस रेट 3.6% है. तो अगर 3.6% है, यू कैन नॉट गो ऑन अ भेड़ चाल. आपको अपने इंटरनल चॉइसेस, उसकी क्वालिटी को इंटरनली इवेल्युएट करना आना चाहिए, ना कि आप कुछ भी टीएटी यहां लिख दो अंधे की तरह. यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग विच यू योरसेल्फ डोंट अंडरस्टैंड. एक बात याद रखना, ये तीनों जो एसएसबी के लोग हैं, मानसा, वाचा और कर्मना, ये तीनों रिसीवर है. रिसीवर और ट्रांसमीटर है कैंडिडेट. यू आर द ट्रांसमीटर. और कम्युनिकेशन के थियरी में बोलते हैं कि द ट्रांसमीटर मस्ट बी वेरी क्लियर व्हाट इज द मैसेज ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट. बिकॉज अगर ट्रांसमीटर को ही नहीं पता तो रिसीवर कैसे समझेंगे? तो आप अपने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को इनको लिख के दे देते हो. इनके समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू कम्युनिकेट. This is your responsibility to bring clarity in your external communication, but that clarity in your external communication will only come when you develop clarity in your inner communication. Now you tell me, how are you developing it as part of your SSB का procedure, preparation का procedure? So speed of decision का है, it is the ability to arrive at workable decisions expeditiously. You should know कि आप जो भी लिख रहे हो, is it workable or not? Today you have left that power, you've given that power to the coaching. मुझे दे दिया और मैं बोलता नहीं इसको ऐसे कर, डेड बॉडी का ड्रामा बना दे, और तू कर लेता है.
इसका मतलब है आप अपने इंटेलेक्ट को बाईपास करके कोचिंग के भरोसे पे शिफ्ट हो गए. नो, दैट यू हैव टू चेंज. And it comprises of the appropriateness of the decision arrived at. So appropriateness of the decision arrived at, ये तीनों देखेंगे. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इनके देखने से पहले तुम अंदर देख लो, तुम चेक करो ना. आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कस्टमर उस प्रोडक्ट में गलती निकालने से पहले तुम उसको ढूंढो, रेक्टिफाई करो. सोच के देखो, यू आर ए सेल्समैन, कस्टमर गलती क्यों निकाले, तुम पहले निकालो, उसको रेक्टिफाई करो. दैट्स ए गुड सेल्समैन. आप अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया कर दो कि कस्टमर को गलती ना मिले. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोडक्ट. दैट्स यू. In the SSB, you are the product and you are the salesperson. And then the quickness in arriving at the decision. इसका मतलब क्या है, इस फिल्टर के थ्रू आपका जो प्रोसेस है इसको फास्ट करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज मिलिट्री ऑपरेशन में नोबडी विल गिव यू टाइम. सर्जिकल साइट में जाके आप धीरे धीरे नहीं सोच सकते, आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेना है. सो इस लूप को ठीक करो. आई कॉल इट लूप 2. आई कॉल इट लूप 2 डिसीजन मेकिंग मॉडल. लूप 2 डिसीजन मेकिंग मॉडल. प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल. प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल. और इस प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल करने के लिए आपको 5 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा. अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. आपको खुद को पता होना चाहिए. योर स्वॉट हैज टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू नो हाउ टू डू इनवर्ड लुकिंग. आपको वो पता ही नहीं है. एसएसबी भी बोलता है इंट्रोस्पेक्ट. आप बोलते हो सर क्या इंट्रोस्पेक्ट करना. आप अपने बिहेवियर को तभी इंट्रोस्पेक्ट करते हो व्हेन यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. लेकिन आप मेरे रेस्पॉन्सेस लिख के जाओगे तो आप कैसे करोगे, फिर तो आप 3 इडियट के चमत्कार की तरह हो जाओगे. सो सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपको अपने इमोशंस, आपको अपने फीलिंग्स, आपको अपने थॉट्स, आपको अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके अपने इनर बायसेस को समझना पड़ेगा. ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड. एंड वंस यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड others. मतलब यू शुड बी सो शार्प इन योर ऑब्जर्वेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कि यू शुड नो कि इस रेस्पॉन्स को पढ़ के साइकोलॉजिस्ट मेरे बारे में, मेरी सोच के बारे में क्या सोचेगा. अरे वो आपके इस सोच को समझना चाहता है. उसका टेस्ट का नाम है मानसा. तो इससे पहले साइकोलॉजिस्ट आपके सोच को समझे, आप अपनी सोच को समझो ना. आप अपनी सोच को समझो ताकि अगर उसके अंदर कोई अशुद्धता है उसे पहले ही ठीक कर ले. नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. नाउ दिस इज जीवन में जितने भी हमारे गलतियां हुए लाइफ में, वेदर इट इज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें दिस रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग, सर्प दृष्टि. सो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस लगाना आना चाहिए. यहाँ पे लाइफ लाइन एनालिसिस करना आना चाहिए. फोर्स फील्ड एनालिसिस करना, असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट इमेजिनेशन इज क्रिएटिव थिंकिंग. यू नो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. आई कॉल इट गरुड़ दृष्टि. किसी घटना के होने से पहले उसको देख लेना. मेरे निर्णयों का प्रभाव क्या होगा, कॉज को देख के इफेक्ट की कल्पना करना. एंड इफ यू डोंट लाइक द इफेक्ट, चेंज द कॉज. एंड कॉन्शियस इज लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ योर इनर कॉन्शियस. अगर मैं बोलता हूं आपको डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, इनर आपका कॉन्शियस बोलता है ये तो सर गलत बोल रहे हैं, तो आप अपने कॉन्शियस को ना सुन के कोचिंग वाले सर को सुन लेते हो. इसका मतलब क्या है, आप अपनी ट्रेनिंग में अपने कॉन्शियस को जगाने की जगह उसे मार रहे हो. आपको किसी ने बोला फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, कैसे, आपको कोई लॉजिक नहीं है लेकिन आप मान रहे हो. इसका मतलब क्या है, आपके अंदर का जो लॉजिक सिस्टम है वो गलत हो गया, क्योंकि लॉजिक तो आपका इंटेलेक्ट का है, लेकिन आपने इंटेलेक्ट को बाईपास कर दिया. एंड इंडिपेंडेंट विल मतलब एक ऐसा डिसीजन मेकिंग का अप्रोच तुम्हारा जिसमें आप सबकी सुनते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन लेते हो वो आपका है और आपको पता है आप वो क्यों निर्णय ले रहे हो. You are not acting under the influence of recommended candidates, under the influence of internet resource, under the influence of coaching. You are doing it absolutely because you believe it. That clarity. So आपको इन 5 को आप नोट कर लो, इसके ऊपर काम करो यार. अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ. टीएटी ठीक मत करो, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ. अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, गलतियों से सीखो ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो. अपने इमेजिनेशन को ठीक करो, कॉन्शियस की आवाज को सुनो, इंडिपेंडेंट विल को करो. व्हेन यू develop these 5 faculties of yours, inner faculties, then between the stimulus and the response you have the freedom of choice, and you will be able to evaluate and assess the quality of those freedom of choice before that choice becomes a decision. You have the freedom to exercise the choice, but once that freedom is exercised and it becomes a decision and you implement that decision, there is no freedom from the consequence. समझ में आया मेरे को क्या बोला? You have the freedom of exercising your choice, but you have no freedom from the consequences of the decision that you take. So please समझो, मैंने जो बोला समझ में आया तो मेरे को कमेंट लिख के बताना क्या किया है. So
in the AFOSOP, we built up these capacities, all these things through the self management leadership के जो प्रोग्राम है उसके थ्रू. एंड उसमें हमारा तो बड़ा सिंपल फंडा है कि आप जब तक अपने इनर रिसोर्स को मैनेज नहीं करोगे, आप ये आउटर रिसोर्स और इन लोगों को मैनेज करके आप इनसे रेकमेंड नहीं हो सकते. सो इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. देखो, दिस मशीन इफ यू नो हाउ टू यूज यू कैन अचीव एनीथिंग, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड यू नो आउटसोर्स इज टू कोचिंग पीपल लाइक मी, आपका गड़बड़ हो जाएगा. If you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So when a TAT ka picture comes, that's a stimulus, and what happens inside you should be in your control, and then what happens outside you is a response. Between the stimulus and the response, you have the freedom of choice, and to exercise that freedom of choice correctly, you should know how to manage the world inside you. Only then the world outside will get managed. पता नहीं ये बात आपको समझ में आया तो बताना. सो देखो, एक जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उसे खिलाती है, समझ में आता है, बहुत छोटा बच्चा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कोचिंग मॉडल में चले जाओ, साला कोचिंग में आपको भी ऐसा खिला रहे यार. ये ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग है. सोच के देखो साला कितना बेइज्जती है कि ये साला 25 साल का लड़का अपनी माँ के हाथ से खा रहा, कोचिंग वाले सर के हाथ से. इज दिस द वे टू बिल्ड अप योर कैपेसिटी? इज दिस द वे? आपको कोचिंग में बता रहे ऐसा करना वैसा करना, डूज एंड डोंट्स इन द ट्रिक्स एंड ट्रिप्स टू क्रैक, PPNDT ट्रुथ रिवील. व्हाट इज दिस ड्रामा हैपनिंग यार? ये सब आपको एक्साइट कर रहा है क्योंकि आपका दिमाग में ताला लगा रखा है. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लियर करना हुआ और भी आसान. क्यों भैया? स्टैंडर्ड डाउन कर दिया DIPR ने. नो, प्लीज डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ ए कोचिंग जहां पे वो आपको क्या कर रहे हैं, ये बेटा ये ले बेटा TAT खा ले, ये ले बेटा ये 600 WAT खा ले, और फिर उसको आके SSB में उल्टी कर दो. अरे ये बच्चे नहीं हो यार. Look at your age. You are a TGC entry 26, 27. You are a साला ACC 27, PCSL 42. You are a NDA का बच्चा तो फिर भी समझ में आता 16-17 साल का लड़का है. लेकिन मैच्योर लड़के हो यार. डोंट बिहेव लाइक दिस. स्पून फीडिंग करवा रहे हो आप. स्पून फीडिंग से थोड़ा ना ऑफिसर बनोगे. इससे आपको लगता है SSB की औकात बन रहा है और आपको लगता है कि इस तरह से खाने वाले बच्चों को देख के SSB बड़ा प्रसन्न हो जाएगा. नो, दिस इज नॉट द अप्रोच. अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो, इस अप्रोच से मत जाओ यार. इस अप्रोच से कैसे तुम्हारे IQ, कैसे तुम्हारा EQ, कैसे तुम्हारा वैल्यू डायमेंशन, कैसे तुम्हारा फिजिकल डायमेंशन इंप्रूव होगा, दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस. और आपको लगता है कि इससे आप एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट कर दोगे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. यू हैव टू वर्क ऑन द फाउंडेशन. You have to work on your level 1, level 2, level 3, level 4. और आपका हर प्रिपरेशन का हर एक्टिविटी should give you a clear indication कि this act of my preparation I'm focusing on the IQ. I'm improving my grasp. I'm improving my observational skills. I'm improving my critical thinking. I'm improving my creative thinking. I'm improving my evaluation skills. मेरे यहाँ पे लॉजिक का प्रॉब्लम. I'm improving on my self awareness. I'm understanding my emotions. I'm building emotional resilience. ये पता होना चाहिए. It's not happening. मेरे पास जब लड़के आते ये है ही नहीं और बोलते सर बिल्डिंग बनाओ. मैं बोलता यार कैसे बनेगा, ये है नहीं. बोला सर इसको छोड़ो सर. अरे कैसे होगा यार बच्चों, कैसे होगा? सोच के देखो. नो, it will not happen. मतलब it will not happen. What is the clearance percentage? मैं नहीं बोल रहा. सिलेक्शन सेंटर साउथ के कमांडेंट बोल रहे हैं, एक्स कमांडेंट. कितना है? 3.6. प्लीज वर्क ऑन ऑल द 4 व्हील्स ऑफ योर टायर. सो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में एक भी वर्ड SSB नहीं है. सारा का सारा इज बिल्डिंग ऑन दीज 3 कॉम्पोनेंट. फिजिकल के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा. वो भागना दौड़ना तुम करते रहोगे. एंड व्हेन दीज कॉम्पोनेंट कम्स, सो ऑल द मैनिफेस्टेशंस विल चेंज बिकॉज योर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरमेंट. सो SML इट इज अ 500% क्लैरिटी. वो तो AFOSOP में आएगा, SSB के ट्रेनिंग में. एंड इसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि IQ में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, EQ में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, वैल्यू डायमेंशन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और उनको कैसे बिल्टअप करना है. यू विल एग्जैक्टली नो. दैट्स अ वर्ड फ्रॉम मी. इट्स अ सोल्जर्स वर्ड. मैं नकली बिल्डिंग नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर काम किया जीवन में. मैं एक जवान से ऑफिसर बना हूं और मैंने अपने फाउंडेशन पे काम किया. उसका असर आपको वीडियोस पे भी दिखेगा. एंड देन उसके ऊपर आप अपना SSB की तैयारी करो. फाउंडेशन के बाद आप एक्चुअली, क्योंकि ये तो जमीन बिल्डिंग तो बना रहे, ये दोनों साथ साथ में भी चल सकता है. दैट इज ओके डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द लेवल. लेकिन अगर आपका फाउंडेशन बहुत ही खराब है बिकॉज ऑफ पुअर पेरेंटिंग, बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ पुअर स्कूलिंग, बिकॉज ऑफ पुअर सोशल सर्कल, देन यू, एंड अगर आपके पास टाइम है, यू शुड टेक इट इंडिपेंडेंटली. सो
only then your expectation alignment will come. Otherwise आप SSB को बेवकूफ़ बनाते रहोगे, अल्टीमेटली आप ही बेवकूफ़ बनते रहोगे. आप SSB को बेवकूफ़ बनाओगे तो अल्टीमेटली आप ही बेवकूफ़ बनोगे. ये आपको याद रखना है. So as of now, you know, we are only doing it 2 weeks of SML for SSB candidates, but we intend taking it to 1 month because 2 weeks भी कैंडिडेट बोल रहे सर ये बड़ा कम हो रहा है. सो वी आर इन फ्यूचर मे बी once I get the couple of more responses today, because आज तक ये फाउंडेशन की बात किसी ने किया ही नहीं है, तो दिस इज कम्प्लीटली न्यू. इट्स अ कम्प्लीटली ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. सो फाउंडेशन कोर्स अभी 2 weeks का है, बट वेरी सून विल कन्वर्ट इन टू 1 month, एंड देन उसके बाद 2 weeks ऑफ SSB का ट्रेनिंग बाय द नेम एयरफोर्स ओपी. दिस इज व्हाट. सो प्रेजेंटली यू हैव 2 weeks ऑफ SML प्लस 2 weeks ऑफ SSB. इस फॉर्मेट में हम शिफ्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली, बिकॉज बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी, कैंडिडेट के लिए भी, कि बिना फाउंडेशन के लिए आप TAT वेटी में घुस जाते हो. मैं भी पागल हो जाता हूँ, तुम भी पागल हो जाते. अरे एक बार देखो, आपका इनपुट यहाँ से आना है, लेकिन जब इनपुट ही नहीं है तो यहाँ पे आउटपुट कहाँ से आएगा? ये सब हो ही नहीं रहा. आप इस पे ताला लगा के इस लूप 2 को नहीं चला सकते. सो आई डोंट नो आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत तकलीफ होता है कि लड़के लड़कियाँ कर क्या रहे हैं यार. इतने लड़के, अच्छे लड़के लड़कियाँ, लेकिन फाउंडेशन पे काम नहीं कर रहे. सो एवरी मंडे वी हैव फ्रेश बैच स्टार्टिंग. द टाइमिंग एज ऑफ नाउ इज 8:30 PM to 10:30 PM, and you can register for this. Now the details you can get it by sending me a WhatsApp message at 82755777650. व्हाट्सअप करना. नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 82755777650. You can share it with your friends, and even if you don't share. Now एक और चीज़ बताना भूल गया. This SML का ये जो पोर्शन है, this is not for SSB candidates alone. Any boys and girls can come. कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, सिविल सर्विस के, इंजीनियरिंग एंट्री, बिकॉज दिस फाउंडेशन इज कॉमन. उसके ऊपर बिल्डिंग IAS का बनाना है, SSB का बनाना है, पुलिस का बनाना है या क्लर्क का बनाना है, वो आपकी मर्जी है. सो डोंट वरी, SML प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल लड़के अपने भाई बहनों को ला रहे हैं इसमें. बोलो भाई इसको अटेंड करो. इफ़ यू हैव इमोशनल प्रॉब्लम, अगर आपके अंदर फॉर एग्जांपल आपको इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस है, आपके अंदर आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है, आपको यू सफ़र फ्रॉम सेल्फ कॉन्सेप्ट, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपको ऐसा लगता है कि आपका इमोशनल भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपका रीजनिंग स्किल्स नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा गलत डिसीजन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको समझते नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप आपसे दूर हो गए, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, आपके कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, आप क्या बोलते हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये. अगर आपके वैल्यू सिस्टम में ही डेविएशन है बहुत ज़्यादा, आप लगते हो कि काम क्रोध लोभ में फंस गए हो, तो बिल्कुल आप इसको प्रोग्राम का अटेंड कर सकते हो, इवन इफ यू आर नॉन SSB कैंडिडेट. सो एब्सोल्युटली इट इज़ ओपन. इट इज़ क्या बोलते हैं, एनीबडी कैन कम, योर ब्रदर्स सिस्टर्स, एनीबडी, वेदर दे इंटरेस्ट इन द आर्मी और नॉट. दिस इज स्पेसिफिक. ये ओनली जो लोग SSB इंटरव्यू जाना चाहते हैं, एयरफोर्स इज ओनली फॉर. बट SML में तो आपके मम्मी पापा आ सकते हैं. अगर आप शादीशुदा और आपके मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट मतलब शादी में कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो एनीथिंग आपको लो फील होता है, यू कैन अटेंड. सो एवरी मंडे इट स्टार्ट्स 8:30 to 10:30 PM का प्रोग्राम है फॉर क्या बोलते हैं SSB का. SML का द टाइमिंग आई लेट यू नो. 82755777650 is the number. And let us listen to Shivam Singh. I told you he's from Delhi and he got recommended for Short Service Commission Technical. This is an old recording. तो मेरे को ऐसे ही सर्च करते टाइम मिल गया, तो आई थॉट आई पुट इट एंड लिसन टू शिवम एंड द काइंड ऑफ क्लैरिटी दैट शिवम गॉट. एंड यू कैन सी फ्रॉम हिज वर्ड्स, हिज एक्सप्लेनेशन, कि एक यात्रा को करना है तो उस यात्रा को हमें पता होना चाहिए कितनी दूर है, उसमें ऑब्स्टिकल क्या है. लिसन टू शिवम एंड यू विल रियलाइज द क्लैरिटी विथ विच ही प्रिपेयर्ड. एंड नेचुरली दैट क्लैरिटी हेल्प्ड हिम. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, अपने अंदर काम किया, and All India Merit 4, his number is also given, you can contact him. So let's listen to Shivam Singh. Good evening everyone, my name is Shivam Singh and I'm going for SSC Tech entry in Kapurthala, and this is my fresher attempt. Today I learned that we have to set our goal first, because we cannot go aimlessly to achieve something. If we want something, we need to have a very clear goal
And then the second step that comes is that there's always obstacles that are going to come in our way, and we don't have to get stuck on that obstacle. We need to recognize it, we need to analyze that obstacle. And how are we going to do it? We're going to do it by using the Sarp Drishti, which is, snake eye view. We're going to recognize the obstacle and we're going to find out the ways that how it is, what it is. Then we are going to go get a bird's eye view, that is Garud Drishti, that was explained on the slide here. And how it helps is that we are going to find our ways to bypass that obstacle. And once we do that, we're going to be on our way towards our goal. Now sometimes what happens is when we see the obstacle, what happens is we get disheartened that the obstacle is too big or we don't have too much ability. So if the obstacle is too big, that means our effort is also going to be that much big as well. And if we don't have that ability, then it means we have to work on ourselves to increase our ability. So there comes now the SMART goal setting, which is the acronym itself. And each word has a specific meaning, like specific goal setting and so on, which was explained in the slide. And we have to use our brains and analyze the goal, and at the same time, clarify our vision and work on ourselves. That's the most important part. And keep a big heart and never get disheartened. That's the main thing. Thank you. So that was Shivam Singh, and now you can see the kind of clarity that he got through the combined program of SML and AFOSOP. So those of you interested, you can contact me at 827-557-650. The next batch is starting from coming Monday. In fact, all Monday the fresh batch starts. So WhatsApp me and I'll send you the details. And thank you, and I hope these videos are helping you. So begin with the end in mind, expectation alignment. These are a couple of key things that you have to understand. Effort alignment. So think on that and give me a feedback through the comment box. And thank you, and may God bless you. Thank you very much.